Some definitions. सबसे पहले intermolecular forces. What is intermolecular force? The force of attraction and repulsion between the molecules called as what? Intermolecular force or forces. Cohesive force. The force of attraction between the molecules of same substance. Important. Same is called cohesive force and the property is called as cohesion. Molecules of water. This is the example. Adhesive force. The force of attraction between the molecules of different substance called as adhesive force. Hand and water, glass and water, you can say these are the example of adhesive force. Range of intermolecular force. The maximum distance between the two molecules up to which the intermolecular forces are effective called as range of intermolecular force. Next definition, an imaginary, that is sphere of influence. An imaginary sphere drawn with a given molecule as a center and radius equal to intermolecular range is called sphere of influence. Surface film. Layer of surface of liquid whose thickness is about equal to range of molecular attraction is called surface film. That layer. Surface energy. Surface energy actually definition per unit area की है, but what is actually mean surface energy? हमने देखा है molecules on the surface of a liquid try to contract. सरफेस के ऊपर के जो लिक्विड है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, और खींचने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स आता है जिसको हमने डिफाइन किया है सरफेस टेंशन. लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपको पता है, अगर मैं बताऊं तो ये सरफेस है, इस सरफेस में का एक हाथ मॉलिक्यूल डाउनवर्ड फोर्स की वजह से नीचे चले जाता है, तो उसकी जगह फिलअप करने के लिए, एम्प्टी स्पेस को फिलअप करने के लिए नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर आता है. तो नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि ये जब नीचे चला गया तो इसने एनर्जी तो रिलीज कर दी, लेकिन जो नीचे वाला ऊपर आएगा, हम भी अगर ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर बोले तो ज़्यादा ऊपर नहीं, हम भी अगर ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमको वर्क करना पड़ेगा. तो उस मॉलिक्यूल को ऊपर आते समय वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज m is the mass of molecule, g is the acceleration due to gravity and h is the height. अगर वो यहां से h हाइट पर ऊपर आया है तो mgh is the potential energy and that potential energy stored on the surface is called as surface energy. Is it clear? Potential energy stored on the surface, or the extra energy holds the surface, that energy is called surface energy. And that potential energy per unit area is of a liquid surface under the isothermal condition. हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सरफेस टेंशन, हम आगे सीखेंगे, तो ध्यान में रखना. आइसोथर्मल एक प्रोसेस है, लेकिन अभी आइसोथर्मल कंडीशन बोल ले तो जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर. सो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. टेम्परेचर बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर पर टेंशन भी डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करती है. इसीलिए आइसोथर्मल एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रहेगी, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. इसका यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया है, मीन्स जूल पर मीटर स्क्वायर आ सकता है. ठीक, वैसे सरफेस एनर्जी तो सबको पता है, जूल में मेजर करेंगे. सो दिस इज सरफेस एनर्जी. सरफेस टेंशन. Surface tension is what? The force per unit length acting at right angle to an imaginary line drawn on the free surface of liquid is called surface tension. हमने देखा है, जब मैंने बोला था टॉप व्यू में ये सरफेस है लिक्विड का, और जब हम ये लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे को राइट एंगल में खींचेंगे, एंड दैट एक्ट्स अ फोर्स. Force per unit length is called as what? Surface tension. Is it clear? Next, this is the definition of surface tension. So यहाँ पर surface tension. Next,
एप्लीकेशन, सरफेस टेंशन के कहाँ कहाँ हमको एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको पता है, हम कपड़े धोते हैं, डर्ट होती है, मैल होता है, वो कपड़ों से दूर निकलना चाहिए। जब हम सिर्फ पानी में अगर कपड़ों को डालते हैं तो उससे कम मैल निकलेगा, ठीक है, निकलेगा बट बहुत कम निकलेगा। लेकिन अगर हम उसी पानी में अगर कुछ थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर दे तो फिर क्या होगा? तो होता क्या है, कपड़े जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन निकल जाते हैं। तो ये एक्शन हुई क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ पानी में कपड़े धो रहे थे उस समय वाटर का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है मीन्स क्या होता है, जैसे कि डर्ट मॉलिक्यूल्स, वाटर तो जाता है डर्ट मॉलिक्यूल के पास, लेकिन वाटर में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो वो डर्ट के साथ मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, बस वो कोहेसिव फोर्स के कारण पानी से मतलब उस डर्ट से दूर हो जाता है और सिर्फ पानी ही बाहर निकलता है, डर्ट बाहर नहीं निकलती। लेकिन जब हम उसमें डिटर्जेंट ऐड कर देंगे तो उनके बीच में का कोहेसिव फोर्स कम हो गया, ड्यू टू दैट सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। और जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा उस समय उन मॉलिक्यूल्स के लिए आपस का फोर्स कम हो गया, तो वो सीधा जाएगा डर्ट के पास, चल यार हम घूम के आते हैं। तो घूम के आते हैं मीन्स डर्ट को उसने बाहर निकाल लिया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो होता क्या है, कपड़े धोने में हम सरफेस टेंशन को कम करते हैं, कम करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं डिटर्जेंट बोलो या सोप बोलो। उससे होता क्या है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है और पानी से मतलब उस सॉल्यूशन से, फिर डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन है उससे हम कपड़े बहुत अच्छे से धो सकते हैं। दूसरा, अगर आप कभी सलाइन या सॉल्टी वाटर से हाथ धो रहे हो तो आपके हाथों को अगर सोप लगी हुई है या आपने कोई हैंड वॉश लिया है और सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर से हाथ धो रहे हो तो आपके हाथ उस मतलब धोए नहीं जाएंगे, क्लीन नहीं होंगे, ऐसा लगेगा वो चिपचिपाहट हाथों में रहता ही है। आप लोगों ने सुना होगा तिरुपति के पास एक तिरुमला नाम का प्लेस है, वहां पर बहुत सलाइन वाटर है, तो वहां पर जब हाथ धोने जाते हैं तो हाथ धोए ही नहीं जाते हैं। रीजन ये है, वाटर का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन होने की वजह से हमारे हाथों को वो क्लीन नहीं करते, वो खुद ही एक दूसरे के साथ मिलके निकल जाता है। तो उसके लिए हम सोप में क्या करते हैं, डिटर्जेंट ऐड करते हैं। दूसरा, टेम्परेचर पे अगर हम पानी को गर्म करें, अगर अब फिर से एक गंदा रुमाल लीजिए, 2 रुमाल लीजिए, एक ठंडे पानी में, सिर्फ ठंडे पानी में डाल दीजिए और एक गर्म पानी में डाल दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि गर्म पानी में जो रुमाल हमने डाला था वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि गर्म पानी में जब हमने पानी गर्म किया तो पानी के सरफेस का टेंशन कम हो गया। पानी के सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो हम बोल सकते हैं कि डर्ट के मॉलिक्यूल्स को आसानी से वहाँ से निकाल के खींच के निकाल सकता है और हमारा रुमाल क्लीन हो सकता है गर्म पानी में। और दूसरा, ठंडे पानी में सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होने से वो रुमाल में से डर्ट ज़्यादा नहीं निकाल सकता है। तो इसीलिए नहाने के लिए बोलते हैं गर्म पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से क्या होगा, गर्म इतना भी गर्म ना हो कि जल जाए, तो गर्म पानी से इतना आसान हो जाएगा कि बॉडी पर की डर्ट निकल जाएगी। जब हम 12th में थे तो हमारे साथ एक फ्रेंड था, तो वो नहाता ही नहीं था लगभग एक हफ्ता। तो फिर जब हमने सरफेस टेंशन लेसन पढ़ा तब उसमें एक एप्लीकेशन आया कि गर्म पानी से नहाने से डर्ट निकल जाती है, मैल निकल जाती है, बॉडी अच्छे से क्लीन होती है। तब फिर वो हफ्ते में 1 बार की जगह 2 बार नहाने लगता था। कुछ लोग तो महीनों नहीं नहाते हैं, वो तो अलग बात है, पर गर्म पानी से नहाने से बॉडी पर की जो भी डर्ट, जो भी मैल, जो भी गंदगी है वो निकल जाती है। सो बिकॉज व्हाट इज इट, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार मस्किटो एग्स ब्रीड करते हैं, मस्किटोज
ब्रीडिंग करते हैं, एग्स ले करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो बोलते हैं उस पानी में थोड़ा सा केरोसिन डाल दो। तो होता क्या एक्चुअली, एग्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर होते हैं, दे यूजेस द सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के यूज की वजह से वो अंडे सरफेस के ऊपर हैं, जहाँ पर वो ब्रीड करते हैं, वहाँ से मस्कीटो के लार्वाज निकलेंगे, फिर मस्कीटोज हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम उसमें केरोसिन ऐड करते हैं तो केरोसिन से क्या होता है, वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज, एंड ड्यू टू दैट डिक्रीज इन सरफेस टेंशन वो एग्स जो फ्लोट कर रहे थे वो अंदर चले जाएंगे, मस्कीटो का ब्रीडिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और हम मस्कीटो से बच सकते हैं। तो दिस इज द व्हाट एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अगर हम टेम्परेचर, कपड़े धोने के लिए भी जो लॉन्ड्रीज में जब देखो गर्म पानी से कपड़े धोते हैं, वो तो वाइट कपड़े जो रहते हैं वो बड़े इसमें उबालते हुए पानी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू बॉइलिंग पॉइंट, जब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो घुल जाता है, 0 हो जाता है। सरफेस टेंशन 0 होने की वजह से वो पानी के मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह से डर्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो पानी को मतलब गर्म पानी अगर लेते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर हम लेते हैं तो आप देखना बहुत अच्छे से क्लींजिंग एक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि फिर उबलते हुए पानी से नहाना चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे, नहीं डर्ट बहुत ज़्यादा है निकालना है तो फिर क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर सरफेस टेंशन कम होता है, इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर? देखो कुछ एप्लीकेशंस दी हैं। टूथपेस्ट देखा होगा आप लोगों ने, इजीली स्प्रेड हो जाता है मुंह में। वाई? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सोप, और सोप होने की वजह से वो पानी में जो भी जो मुंह में जो भी वाटरी सब्सटेंस है, सलाइवा है, उसका सरफेस टेंशन कम करता है और वहाँ पर हमको इजीली क्लीनिंग की एक्शन होगी। अदरवाइज क्लीनिंग नहीं होगा। सिर्फ पानी से हम मुंह नहीं धो सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो हमको टूथपेस्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें सोपी एक्शन होती है, डिटर्जेंट के जैसी एक्शन होती है। वाटर का सलाइवा का जो भी सरफेस टेंशन है वो कम होता है और क्लीनिंग की एक्शन की जाती है। सो दिस आर सम एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन। देखो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, टूथपेस्ट स्प्रेड फ्रीली इन माउथ while cleaning the mouth because it contains soap which reduces the surface tension. Detergent added to the water, surface tension of the resulting solution solution become less than the water. This increase the contact and cleaning ability of soap solution. तो soap solution की cleaning ability बढ़ जाती है। Next, mosquitoes eggs floats on the surface of water. When kerosene spread on the water, surface tension decreases and eggs goes inside the water and dies out, और हम बोल सकते हैं mosquito does not, और breeding stop हो जाएगा। ठीक? Now surface tension of the liquid, किन चीज़ों पर surface tension depend करता है? Surface tension depends on purity of liquid. More is the pure, more is the surface tension. ठीक? इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन में चेंज हो सकता है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मैंने अभी आपको बताया, मोर इज द टेम्परेचर, लेस इज द सरफेस टेंशन। 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन बिकम 0। ऐसा अब वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, जरूरी नहीं है हर एक सब्सटेंस के, हर एक लिक्विड के लिए 100 ही होगा, अलग अलग टेम्परेचर होंगे। इसीलिए 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल बोले तो इधर या उधर, ठीक है ना? क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन बिकम 0। और आप बॉइलिंग पॉइंट पर भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो 0 एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक? बहुत से लिक्विड्स के लिए दोनों सेम हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया, सरफेस कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा रहो, सरफेस टेंशन जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो लगेगा ही लगेगा, उसमें एरिया पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट सरफेस टेंशन ऑफ
लिक्विड। हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी देखा है, डायमेंशंस भी देखे हैं एंड SI और CGS यूनिट भी देखे हैं। वाटर के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन? 0.727। सो हम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सो these are some important applications and some important points about surface tension. Relation between surface tension and surface energy, इन दोनों में का रिलेशन हमको देखना है। What is it? What is the relation? So उसके लिए हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। This is a frame A B C D. It's a frame, वायर की बनी हुई है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, अब इस फ्रेम को हमने पानी में डुबाया, पानी जिसमें सोप सॉल्यूशन है, जिसके कारण क्या होगा, इस फ्रेम के ऊपर एक फिल्म, एक लेयर बन जाएगी। नाउ पानी से, सॉल्यूशन से जैसे हम उसको बाहर निकालेंगे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोप फिल्म अंडर दिस एरिया ABCD। अब अंडर दिस एरिया ABCD में सोप फिल्म बनने की वजह से इट्स अ सोप फिल्म, इट्स अ सरफेस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस सरफेस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इनवर्ड फोर्स फील करेगी क्योंकि ये जो CD है इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज मूवेबल, ये स्लाइड हो सकती है विदाउट एनी फ्रिक्शन, स्लाइड हो सकती है, हम इसे स्लाइडिंग मान के चलते हैं। ये फिक्स है, ये वाला C शेप, लेकिन इसके ऊपर ये जो है CD, ये स्लाइड हो सकता है इधर उधर, मान के चलो। अब ये इनवर्ड फोर्स फील करेगा, बरोबर। तो यहाँ पर का हमको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड आउट, लेट ABCD इज द फ्रेम, F इज द फोर्स, T इज द सरफेस टेंशन, L इज द लेंथ ऑफ साइड CD वगैरह वगैरह। तो हम फील कर सकते हैं यहाँ पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर एक बात नोट करने की जैसी है, ये जो सोप फिल्म है इसकी केवल आपको एक साइड दिख रही है, दूसरी साइड नहीं, दूसरी साइड इसके पीछे है। तो वहां पर भी दूसरे साइड को भी तो फोर्स लगेगा ना, तो फोर्स दो साइड में लगेगा, इसीलिए यह आएगा ट्वाइस L, एक सामने वाली साइड और एक पीछे वाली साइड। बस यहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू 2 इंटू TL, इतना फोर्स लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस CD को स्लाइटली मूव करेंगे, स्लाइटली, इतना भी नहीं कि वो टूट जाए, हल्का सा मूव करेंगे हम। और जब हम मूव करेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं, लेट इट इज स्मॉल, दैट इज dx। लेकिन आपको पता है, हमको अगर इस फिल्म को थोड़ा सा बढ़ाना है, वी हैव टू डू द वर्क, एंड दैट वर्क इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? वर्क डन। तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वर्क के लिए फॉर्मूला लिखता हूं मैं, dW इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो लगेगा F और डिस्प्लेसमेंट होगा dx। बस यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे, dW इज इक्वल्स टू 2TL dx। इज इट क्लियर? फोर्स की जगह 2TL इंटू dx के जगह dx। बस वर्क डन इज इक्वल्स टू 2TL dx। अब इसमें 2L dx क्या हो गया, देखो, dW इज इक्वल्स टू T इंटू, मैं ऐसे लिखता हूँ 2L dx, लेंथ इंटू ब्रेथ, dx ब्रेथ है, लेंथ है L, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बोले तो एरिया, तो 2 इसलिए आया क्योंकि आपके साइड का और पीछे के साइड का एरिया, इसीलिए 2 आया। तो मैं लिख सकता हूँ ये चेंज इन एरिया है, ये टोटल एरिया नहीं है, ये क्या है, चेंज इन एरिया। जितना dx और लेंथ L इधर की, dx और लेंथ L उधर की, तो वो हो गया चेंज इन एरिया। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ dW इज इक्वल टू T इंटू dA, दिस इज व्हाट, वर्क डन। एक इतना काम करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फिल्म इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल।
दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। क्या बोलेंगे हम उसको? सरफेस एनर्जी। इतनी स्टोर्ड हो जाएगी, कितनी? T इंटू डी ए। व्हाट इज डी ए? डी ए बी द चेंज इन एरिया। और आप फिर इस पर से बोल सकते हो टेंशन को डी डब्ल्यू अपॉन डी ए, तो ये भी बोल सकते हो T इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी ए, वर्क डन अपॉन एरिया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सो यही हमको डिराइव करना था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। दिस इज रिलेशन। नेक्स्ट हमको देखना है वर्क डन इन ब्रेकिंग अ बिग ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर। व्हाट इज इट? एक बड़ा सा बिग ड्रॉप हमको दिया गया है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे ड्रॉपलेट से ये बना है। जैसे कि जब रेन या बारिश आती है तब हमको पता है क्लाउड से बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बहुत बड़े साइज के, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं उन ड्रॉपलेट्स का कन्वर्जन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हो जाता है। या फिर अगर हम शावर करते हैं तो शावर के समय जो आता है वो एक ड्रॉपलेट होता है बड़ा, लेकिन इट गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो उस समय कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस बड़े बिग ड्रॉप को हमको कन्वर्ट करना है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, लार्ज नंबर ऑफ। तो बिग ड्रॉपलेट एक ही है, लेकिन छोटे ड्रॉपलेट्स हमारे पास कितने कंसिडर करके चलेंगे हम? n है। और बड़े बिग ड्रॉपलेट का रेडियस कैपिटल आर है और छोटे ड्रॉपलेट का रेडियस कंसिडर करके चलेंगे हम स्मॉल आर। ओके, तो अब इस बिग ड्रॉपलेट का कन्वर्जन करना है बड़े से छोटे में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। हमने फॉर्मूला देखा है, वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, बरोबर। वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया निकालना है हमको बस, और कुछ नहीं। तो बड़े बिग ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया बताओ, दैट इज S1 मैं बोलता हूँ। व्हाट इज द सरफेस एरिया? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और बड़े बिग ड्रॉपलेट के बाद छोटा ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया बोलो, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन एक ड्रॉपलेट होता तो ठीक है, कितने ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास? हमारे पास n ड्रॉपलेट्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ अब चेंज इन एरिया, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो हम निकालेंगे डेल्टा S या डेल्टा DA लिखा तो भी चलेगा। DA 4 पाई R स्क्वायर माइनस n इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सो ध्यान में रखना इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसीलिए फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया करना पड़ेगा। तो n इंटू 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? डेल्टा A 4 पाई, बस बचेगा nr स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया हमारा चेंज इन एरिया। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। सो वर्क डन टू ब्रेक डाउन बिग ड्रॉपलेट इज इक्वल्स टू व्हाट इज इट? T कितना? T है इंटू 4 पाई, क्योंकि DA की वैल्यू ये है 4 पाई इन ब्रैकेट n R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब बिग ड्रॉपलेट है तो हमको उसके रेडियस पता चल जाएगी, लेकिन छोटे ड्रॉपलेट की रेडियस हमको पता नहीं चलेगी, तो हम क्या करेंगे? उसको रिप्लेस कर देंगे। अब मुझे बताइए इन दोनों में क्या ऐसी चीज होगी जो सिमिलर है? दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, जितना पानी ये है उतना ही पानी ये रहेगा, वॉल्यूम वाइज कोई चेंज नहीं। 1 लीटर पानी है तो इसमें कोई 2 लीटर नहीं तो बनेगा ना, 1 ही लीटर बनेगा। तो 1 लीटर का कन्वर्जन 1 लीटर में हुआ, मीन्स वॉल्यूम इज सेम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर्मूला? 4
बाई 3, क्योंकि ये स्फेरिकल है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ऐसे कितने हैं n, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल आर को, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से 4/3 पाई गेट कैंसल, एन स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, और आर तो बचेगा n टू द पावर 1/3 इंटू आर इज इक्वल्स टू आर, तो स्मॉल आर को लिख सकता हूँ मैं कैपिटल आर अपॉन n टू द पावर 1/3। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 4 पाई टी। अब आर स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं आर अपॉन, आर स्क्वायर के जगह हम लिखेंगे व्हाट इज इट, आर अपॉन 1/3, तो कितना आएगा देखो, n इंटू आर का स्क्वायर है मतलब आर स्क्वायर अपॉन n टू द पावर 2/3, स्क्वायर है तो कोई मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 इंटू 1 2, माइनस दिस इज आर स्क्वायर। बस अब इसमें से आर स्क्वायर को बाहर निकालो, सो वर्क डन इज इक्वल टू 4 पाई टी आर स्क्वायर, और ये n का पावर 1 है और ये n का पावर 2/3 है, तो हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 दिस इज इक्वल्स टू 1/3। बस इस n को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये बनेगा n टू द पावर 1/3 माइनस 1, क्योंकि आर स्क्वायर हमने पहले ही बाहर निकाला है। दिस इज द वर्क डन, दिस इज व्हाट वर्क डन। हमेशा ध्यान में रखना, दिस इज मेमोराइज करना इस फॉर्मूले को, बिकॉज बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने ड्रॉपलेट्स का कन्वर्जन इतने में हो गया, या फिर बड़े एक ड्रॉपलेट का कन्वर्जन इतने ड्रॉपलेट्स में हुआ, तो हमेशा कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो n की वैल्यू है ये हमेशा क्यूब के फॉर्मेट में दी जाती है, जैसे कि 8 हो गई, या चलो सपोज एक एग्जांपल, कोई भी क्यूब के फॉर्मेट में ही दी जाएगी जिसका क्यूब रूट निकल पाएगा 125 लाइक दिस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द वर्क डन, हमको फाइंड आउट करना है 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक बड़ा स्फीयर है या ड्रॉपलेट है, और उसको हमने 125 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन किया, तो हमको स्मॉल रेडियस की कोई ज़रूरत ही नहीं इस फॉर्मूले में। 125 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो गए, तो व्हाट इज द वर्क डन, तो देखो हम वर्क डन के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 4 पाई टी, वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट इज इट 4 पाई टी, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास है वाटर के लिए होता है 0.7, आर स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 उसका स्क्वायर, इन ब्रैकेट n टू द पावर 1/3, बोले तो 125 टू द पावर 1/3 -1। बस अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, 3.14 2 ज़ा 12.56 इंटू 0.7 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 125 का स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 5 में से 1 गया 4 बचे। बस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा 12.56। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 ज़ा 42 कैरी 2, 7 5 ज़ा 35 प्लस 4 39 कैरी 3, 7 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1
8, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 100 के डेसिमल पॉइंट यहाँ से कट कर दो तो ये बचेगा 10 to the power -2 इंटू 4, बस हो गया आंसर। इसको और 4 से मल्टीप्लाई करो 8, दिस इज अवर आंसर। इतना जूल वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली सिंपल एक एग्जाम्पल है, बस ऐसे ही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना चाहिए, बस ये हमको आना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा एंड दिस इज ऑल्सो यूजफुल। हाँ, अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कहाँ से होगा? इसके लिए एनर्जी की जरूरत लगेगी। बिग ड्रॉपलेट गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? स्मॉलर ड्रॉपलेट। तो इसको एनर्जी की जरूरत लगेगी, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी मतलब टेम्परेचर कम करके उस ड्रॉपलेट के हीट से एब्सॉर्ब की जाती है। तो ड्रॉपलेट्स आप देखो, शावर में अगर पानी आ रहा है तो बाहर आने वाला पानी ठंडा फील होता है, या रेन वाटर का पानी ठंडा फील होता है। ठंडा क्यों होता है? बिकॉज बिग ड्रॉपलेट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उस बिग ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन करने के लिए छोटे ड्रॉपलेट्स में से एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है। सो एनर्जी इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्मॉलर ड्रॉपलेट सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द स्मॉलर ड्रॉपलेट डिक्रीजेस। आप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को बड़ा कर दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटा कर दो, टेम्परेचर कम होगा। बेस्ट एग्जांपल रेन वाटर का ध्यान में रखो, शावर का ध्यान में रखो, या आप गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी को एक मग में लेकर ऊपर फेंक दीजिए। जब वो पानी नीचे आएगा तो आपको ठंडा फील होगा। आप देखो नीचे आने वाले पानी के बहुत सारे बूंदे दिखाई देती है, लेकिन जब आप ऊपर फेंकते हो उस समय वो एक ही गोला दिखाई देता है। तो कहने का मीनिंग, जब बड़े ड्रॉपलेट से बहुत सारे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे तब उसका टेम्परेचर कम होगा। इज इट क्लियर? पक्का? नाउ एनर्जी, उस ड्रॉपलेट के पास कितनी एनर्जी होगी? ये तो वर्क डन हुआ, चलो ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाएगा व्हाट इज द एनर्जी दैट ड्रॉपलेट हैव? बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी का फॉर्मूला हम वर्क डन से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है। इसके पहले वाला फॉर्मूला बोलो क्या आया था? वही एनर्जी है, वर्क डन गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। यही तो एनर्जी है, यही तो उस ड्रॉपलेट की एनर्जी है। इसी एनर्जी को हमने वर्क डन, या इसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। अब इसमें से हम कुछ कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं। इक्वल्स टू 4 पाई टी, आर स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, व्हाट इज इट? ये बचेगा एन आर स्क्वायर माइनस अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर। अब क्या करें, इस आर को रिप्लेस कर दो। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आर अपॉन एन टू द पावर 1/3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, नहीं वही फॉर्मूला आएगा, अभी हम रिप्लेस नहीं करेंगे। सो दिस इज एनर्जी, बस हमको यही तक देखना है। दिस इज द एनर्जी। उल्टा अगर कभी सोचा जाए कि बड़े ड्रॉपलेट्स के कन्वर्जन के अलावा अगर हम छोटे ड्रॉपलेट्स को बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन करें तो कितना वर्क डन लगेगा, तो फॉर्मूला यही आएगा। सिर्फ हमको जो बड़ा ड्रॉपलेट है उसकी रेडियस देनी चाहिए, वो रेडियस ये यूज करके हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर। तो सोप बबल की रेडियस हमें दी गई है आर, और इसको आर रेडियस का बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सोप बबल बनता क्यों है? बच्चे जो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, कोई सिंपल सॉल्यूशन लिया जाता है जिसमें डिटर्जेंट होता है और उसमें एक स्ट्रॉ के द्वारा हम अगर एयर ब्लो करते हैं,
बुड़ 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 तो सारे बबल्स बन जाते हैं। तो ये बबल्स बने क्यों हैं? बनने का रीजन क्या है? द रीजन इज दैट सिंपल पानी से क्यों नहीं बने? क्योंकि सिंपल पानी का जो भी बबल है बनेगा तो सही, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा और कोलैप्स कर जाएगा विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम। लेकिन अगर आप जैसे ही उसमें डिटर्जेंट ऐड कर देते हो तो उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, और सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज होगा तो इसकी कोलैप्स करने की टेंडेंसी कम रहेगी। तो ये मान के चलो पहले इसका वॉल्यूम था 0, अब इसका वॉल्यूम बन गया कैपिटल R इतना। तो अब हमको वॉल्यूम बन गया कैपिटल R इतना या सरफेस एरिया बढ़ गया। तो अब हमको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बोलो क्या है? वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? T इंटू डी ए, T इंटू डी ए। अब पहले वाला एरिया कितना था? 0, बाद वाला एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। लेकिन अब सोप बबल में एक ध्यान में रखना, इसकी थिकनेस निग्लिजिबल होती है, इसकी थिकनेस मान के चलो निग्लिजिबल होती है, लेकिन इसके दोनों सरफेस, एक अंदर का सरफेस जहां एयर है और एक बाहर का सरफेस जहां भी एयर है, तो इसके 2 सरफेसेस हो गए, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो दोनों सरफेसेस में आपको दिखेगा, दोनों सरफेसेस में आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ये सरफेस। तो 4 पाई R स्क्वायर को हमको 2 सरफेसेस के कारण 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सरफेसेस है सोप बबल में। तो टोटल चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा? हम लिख सकते हैं यहाँ पर S1 इनिशियल एरिया 0, फाइनल एरिया 8 पाई R स्क्वायर। चेंज इन एरिया S2 माइनस S1 दैट इज DA। S2 माइनस S1 अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कितना आएगा? 8 पाई R स्क्वायर माइनस 0, दिस इज 8 पाई R स्क्वायर। बस यही वैल्यू हमको ये फॉर्मूले में पुट करना है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू 8 पाई R स्क्वायर। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 8 पाई T R स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन इन व्हाट? ब्लोइंग अ सोप बबल। कभी कभी दिया जाता है हमको एक रेडियस है R, चलो इसको R1 मानता हूं, और इसको साइज में इंक्रीज करना है। वी हैव टू इंक्रीज इट, वी हैव टू इंक्रीज इट। तो इस सिचुएशन में बड़ी रेडियस बन गई R2। तो अब हमको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन। तो पहले एरिया कितना था? 4 पाई R1 स्क्वायर, बाद में एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई R2 स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले में एक चेंज होगा, बड़ी रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी रेडियस का स्क्वायर। तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा 8 पाई T R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। जब हमको एक बबल की रेडियस बढ़ाने के लिए पूछा जाएगा, जब R1 एंड R2 आर द 2 व्हाट? रेडियसेस, radii of that bubble, then we can use this formula to find the work done. Is it clear?